Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to yet another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on the mutual fund and related issues. You can call us on 2331-4444, 2371-7106, 2371-7117. And if you are calling from outside Delhi, please don't forget to prefix 011 before calling these numbers. Well, I am Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और शुरुआत में हेडलाइंस लेके मौजूद हैं निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi praises the youth of the country for undergoing transformation and wanting to do something new. CBDT extends deadline for payment under Vivad Se Vishwas scheme, and foreign investors pump in over 14,500 crore rupees into the Indian capital markets in August. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में परिवर्तन लाने और कुछ नया करने की चाहत रखने वाले युवाओं की प्रशंसा की। सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान करने की तारीख बढ़ाई और विदेशी निवेशकों ने अगस्त में भारतीय पूंजी बाजारों में 14,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। And today, Prime Minister Narendra Modi, in his Mann Ki Baat program, said that the mind of the youth has undergone a transformation in today's young minds, shunning obsolete, age-old methods and patterns, want to do something new altogether. In his Mann Ki Baat program on All India Radio today, Mr. Modi said that they do not want to tread the ready-made beaten paths, but want to carve out newer paths. In this context, Mr. Modi gave the example of how college students and young people working in the universities and the private sector enthusiastically came forward when India opened its space sector some time ago. Mr. Modi expressed the confidence that in the coming days, a large number of satellites will be of those developed by the Indian youth. He added that similarly, young people are moving away from the family traditions and expressing the wish to do a startup and willing to take risks. The Prime Minister said that the startup culture is expanding even to smaller cities, which is an indication of a bright future. And we have our first caller, Pradeep from Chennai. Pradeep, welcome to the show. Please ask your question. नमस्कार सर। नमस्कार। मैं चेन्नई से प्रदीप बोल रहा हूँ। Yeah, please go ahead. Ask your question. सवाल पूछिए। म्यूचुअल फंड का रेगुलर इन्वेस्टर हूँ। तो मैं टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने 2-3 फंड सेलेक्ट किए हुए हैं जी। ICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ये कैसा रहेगा और 5 से 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इस पे फोकस करिए जरा। जी, आमतौर पे मेरी सलाह होती है कि किसी भी सेक्टर फंड में पैसा न लगाए, लेकिन टेक्नोलॉजी फंड्स इसके लिए एक अपवाद साबित हो रहे हैं। इन फंड्स का लंबे समय का रिटर्न भी हमारे जेनेरिक वेल डाइवर्सिफाइड फंड से ज्यादा बेहतर इनका रिटर्न रहा है। तो मेरी सलाह होगी कि इसमें जरूर पैसा लगाइए। ढेर सारा पैसा न लगाओ, केवल ये ध्यान रखें। और
आपने जो फंड चुना है वो अच्छे हैं। टाटा डिजिटल का खासकर प्रदर्शन पिछले कम दिनों में काफी अच्छा रहा है, लेकिन बाकी सब फंड का भी प्रदर्शन लंबे समय में कम समय में बढ़िया ही रहा है। और लगातार इन्वेस्ट करें। ये बिल्कुल ना भूलें कि ये जो रेगुलेटरी इक्विटी में इन्वेस्ट करने का नियम है ये हमेशा लागू होता है। और दिल्ली से हमारे श्रोता वरुण लाइन पे हैं। वरुण नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार। सर मुझे धीरेन्द्र जी से पूछना है, जो शॉर्ट टर्म के लिए कोई 2-3 फंड बता दीजिए, क्योंकि ना मुझे जैसे पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा फ्रैंकलिन का साथ, तो अगर कोई ऐसे फंड अगर दिक्कत आ जाए ताकि 1-2 लगाने से मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। आपका क्या सजेस्ट होगा सर, वो बता दीजिए। जी हाँ, मेरी सलाह होगी कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए किस कैटेगरी के फंड में लगाते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि आज जो रुख बना हुआ है कि कभी ब्याज दरें कम हो सकती हैं, इसकी संभावना बनी हुई है। कब होगा ये पता नहीं, लेकिन इसकी संभावना बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि किसी भी तरह के डेट फंड में पैसा लगा हो आपको बेहतर ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये उतार चढ़ाव और डेट फंड के प्रेफरेंस को देखते हुए जिस तरह जो कुछ भी हुआ फ्रैंकलिन के केस में, उस तरह की स्थिति को बचाने के लिए या उससे बचने के लिए आपको यही करना चाहिए कि अपने समय के हिसाब से वो कैटेगरी चूज करें। अधिकतर निवेशकों की जरूरत शॉर्ट टर्म डेट फंड से आगे गए बिना उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। और एक नियम जिसका कि हमेशा पालन करना चाहिए कि जब भी आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो केवल बढ़िया रिटर्न के आधार पर उस फंड का चुनाव न करें, क्योंकि बल्कि जो कम समय में जिस फंड का ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है उस फंड को बल्कि अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जहां कहीं भी ऐसा देखा गया है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न है तो वो कोई ना कोई रिस्क अज्यूम करके लिया गया होगा, जो कि निवेशकों के लिए एक सरप्राइजिंग और काफी नुकसानदेह रिस्क साबित होता है। और खासकर डेट फंड में तो सबसे ऊपर वाले फंड को कम समय के रिटर्न के आधार पे बल्कि आपको छाट देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। और यही आपका शुरुआती स्टेप्स होना चाहिए फंड का चुनाव करने में। Yeah, and our next caller is Ashish from Mumbai. Ashish, welcome to the show. Please ask your question. Yeah. Good evening, Mr. Market Mantrati. Good evening. My question to Dhiren is ki, Mr. Dhiren, you always tell ki you should avoid new, but in present scenario, if you see ICICI ka new F4 currently just concluded SBI best advantage. They have F4 is fully we can see the money which they have got is very huge amount. So yes. What is the scenario? Like, should you invest in new F4, new fund F4s, or like what is your views? Mm-hmm. My view remains the same, that when it comes to mutual fund, one should always go by the track record, and new funds don't have track record. The fact that two funds have raised substantial amount of money, it's quite understandable that investors have huge expectations from these funds. And for these funds, raising so much money itself is a very disappointing, might prove to be a disappointing thing for investors who have invested in them. Simply because, investing 1,300 crore at one given point is a difficult thing, is a difficult job even for finding best of fund managers. So it presents a different challenge. At the same time, so many investors putting so much money. They have come with a reasonable expectation or a high expectation. And it is very likely that, investors, even if the fund does okay, investors will be disappointing simply because they have set their expectations very high. So, it remains the same. Investors should avoid, even though many investors are getting excited about NFOs. Mm-hmm. And Dhiren, there is actually a connecting question. The absence of firm cues is actually confusing the investors. And ever since this pandemic has begun, it has been the story with some investors being scary of the markets touching all-time high now, and while others are scared of the weak fundamentals actually. And even as we discuss this, there would be listeners keen to know about investing in quality mutual funds. So what's your take on that and advice for our listeners? No, I agree that, most investors, there are investors who are very scared, and I know investors who actually pulled their money out about a year ago. Mm-hmm. There are investors who took their money out, a few months ago.
and they have been waiting for that correction, and that correction hasn't happened. Many investors are greatly disappointed who have waited because the market has gone up so substantially. Many of those investors, maybe they are putting their money simply by giving up. They're losing their patience, waiting for that correction, which has not happened. Right. High quality funds, it always, one has to really mitigate the risk of, not catching a market high. And Right. it's a very difficult thing. My suggestion is that don't forget the basic rule that when investing in equity, invest steadily, gradually, over a period of time. And because the best of funds will prove to be disappointing if you invest with huge expectation at one go. And never try to time the market, actually. Yes. और इस बीच पुणे से हमारे श्रोता सुनील हमसे जुड़ चुके हैं। सुनील नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मेरा सवाल है कि अभी आपने बताया कि थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट ज्यादा ना करें जी। तो उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं जो इन्वेस्टर तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए कि नहीं? और दूसरा सवाल है कि CAGR और XIRR इसमें कौन सा इम्पोर्टेंस देना चाहिए? CAGR और XIRR दोनों करीब करीब एक ही चीज है। केवल ये है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पे ही आधारित है। IRR अगर हमारा कोई इनकंसिस्टेंट कैश फ्लो हो, आपने कभी 500 रुपए लगाया, कभी 1000 रुपए लगाया, अलग अलग दिन पे लगाया, और उसका अगर आप रिटर्न जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो XIRR है, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। आमतौर पे रिटर्न कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है जब आप एक निश्चित रकम, एक खास निश्चित दिन आप निवेश कर रहे हैं। लेकिन जैसे बैंक खाते का रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है कि किसी से भी समय आप अपना पैसा निकाल लेते हैं, कभी भी लगा देते हैं, कभी भी जमा कर देते हैं, और बैंक उसमें आपका रिटर्न कैलकुलेट करता है इस आधार पे कि कितने दिन आपका कितना पैसा जमा था। वही XIRR है, वही IRR है। तो CAGR और IRR कोई अलग चीज नहीं है। अलग अलग तरीके के फ्लोज के रिटर्न को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला अलग है। क्या करना चाहिए थीमेटिक फंड के बारे में? आमतौर पे निवेशकों को बचना चाहिए, एक थीमेटिक फंड में नहीं लगाना चाहिए। और ये जो आप कह रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुक करने का कोई पहले से प्री स्टेटेड फॉर्मूला निवेशकों को फॉलो करना चाहिए? नहीं। निवेशकों के लिए सबसे बड़ा आधार होना चाहिए अपनी जरूरत। आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, देखें कि 5 साल के लिए पैसा है और कम से कम 5 साल के लिए लगा रहे हैं। और अगर आप किसी उद्देश्य के लिए लगा रहे हैं और 5 साल के पहले भी अगर वो जरूरत पूरी हो जाती है, मतलब ये निवेश अगर रफ्तार से बढ़ जाता है, तो अपना पैसा निकाल लीजिए। बाजार के आधार पे अपना आप रणनीति तैयार नहीं कर सकते। एक तो अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल लीजिए, और दूसरा है कि आप किसी फंड का चुनाव कर रहे हैं क्योंकि वो फंड अच्छा है, और अगर वो अब अच्छा साबित नहीं होता है तो अच्छा नहीं साबित होने का डेफिनेशन बनाएं। अच्छा क्या है इसका डेफिनेशन बनाए तो अच्छा नहीं है ये डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा, और उसके आधार पे आप अपना निवेश का बदलाव करें। केवल इसलिए कि प्रॉफिट बुक हो गया है, क्योंकि प्रॉफिट बुक करने की वजह से एक खास प्रॉफिट या कोई टारगेट रिटर्न मीट होने के बाद आप जब पैसा निकाल लेते हैं तो दोबारा आपके लिए पैसा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर आप बाजार के बड़े मूव से बचे रह जाते हैं। Right. And moving on to the next story, the Central Board of Direct Taxes, CBDT, has further extended the deadline for payment under the Vivad Se Vishwas scheme without any penalty by a month to 30th of September this year. The earlier deadline for payment of the amount under the Act was August 31st. The Finance Ministry in a statement said that the decision to extend the due date was taken considering the difficulties being faced in issuing and amending Form Number 3, which is a prerequisite for making payment by the declarant under the Vivad Se Vishwas Act. The ministry, however, clarified that there is no proposal to change the last date for payment of the amount with additional amount under Vivad Se Vishwas Act, which remains as 31st of October. And now we slip into a break. बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर
समझकर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. Our next caller is SPS Jan from Noida. Mr. Jan, welcome to the show. Please ask your question. हेलो। Hello, we can hear you. हाँ, नमस्कार जी, धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। नमस्कार। अभी मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर है, तो अभी आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कुछ अमाउंट बैलेंस एडवांटेज फंड में ट्रांसफर किया जाए और कुछ गोल्ड फंड्स में लिया जाए, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? गोल्ड का तो पता नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बाजार बहुत ऊंचे स्तर पे है, जो कि है, और आपका सारा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, आपने कोई एसेट एलोकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं अपने लिए निर्धारित किया है, तो जरूर कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम में लगाना चाहिए। बाजार की स्थिति को देख करके आज आप बैलेंस एडवांटेज फंड का चुनाव करेंगे, कल आप फिर क्या कंजर्वेटिव इनकम फंड का चुनाव करेंगे, ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। मेरी सलाह होगी, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा फंड है जो कि एक बड़ा भाग इक्विटी में लगाता है, एक छोटा भाग फिक्स्ड इनकम में लगाता है, और समय के साथ थोड़ा बहुत फेरबदल होता है उसके एलोकेशन में। ये बाजार का स्तर अगर बहुत ऊंचा है, तो इसके लिए नियम आपको बनाना पड़ेगा अपने लिए। वो है कि आपका कितना, जब बाजार अगर आपने लगाया था और ये सारा पैसा अगर इक्विटी में बहुत बढ़ गया है, तो जो अगर कोई आपने एलोकेशन रखा था, चाहे वो 75% इक्विटी 25% फिक्स्ड इनकम क्यों नहीं हो, वो भी आज बदल गया होगा। और जिस रफ्तार से बाजार बढ़ा है उसकी वजह से, तो ये बल्कि अच्छा मौका होगा अगर आप 75-25 के एलोकेशन को रीसेट करते हैं, तब भी आपको कुछ पैसा निकाल लेना चाहिए इक्विटी से। लेकिन अगर आपने अपने मन में अगर ये नियम ही नहीं, अपने लिए अगर ये नियम ही नहीं बनाया है, तो ये करना बड़ा मुश्किल होगा। नियम बनाइए, अकॉर्डिंगली फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाइए, और अगर बाजार में कभी गिरावट होती है, इस वजह से आपको मौका मिलेगा दोबारा पैसा लगाने का। और मुंबई से हमारे श्रोता श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैंने अभी SBI बैलेंस एडवांस फंड में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है जी। तो ये फंड कैसा है, और मैंने सही किया या मुझे SIP करने का था, ये मुझे जी। आमतौर पर निवेशकों को SIP करना चाहिए, पर आपने 1 लाख रुपए लगा दिया, अगर ये आपके पास उपलब्ध था, यहाँ से आप SIP शुरू कर दीजिए। और ये फंड कैसा है हमें नहीं पता, ये कैसा है, ये फंड की अभी शुरुआत हो रही है, भविष्य में निर्धारित होगा कि ये फंड कैसा साबित होता है। और चलते हैं अगली खबर की ओर। विदेशी निवेशकों ने अगस्त में भारतीय पूंजी बाजारों में 14,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2 से 27 अगस्त के बीच 986 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी, जबकि 13,494 करोड़ रुपए का डेट बाजारों में निवेश किया। इस तरह अगस्त के दौरान भारतीय पूंजी बाजारों में 14,480 करोड़ रुपए का कुल निवेश हुआ। मौजूदा वित्त वर्ष में जून को छोड़कर सभी महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बिकवाली करते रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने भारतीय पूंजी बाजारों में 12,974 करोड़ रुपए का निवेश भी किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजारों से अप्रैल में 8,836 करोड़ रुपए निकाले, मई में 1,958 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि जुलाई में 7,410 करोड़ रुपए की निकासी की गई। And now we are joining by संतोष from UP. संतोष, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मुझे ये जानना है कि टैक्स सेविंग के लिए यूलिप प्लान बेस्ट है या फिर म्यूचुअल फंड के किसी टैक्स सेवर स्कीम में करना, मतलब SIP करना ठीक रहेगा? दोनों में से बेटर कौन सा है? ऑलराइट, धीरेन्द्र। ELSS में लगाना चाहिए। अकेला ऐसा विकल्प है जिसमें कि आप इक्विटी में पूरा पैसा लगाते हैं, और केवल जो 3 साल का लॉक इन पीरियड है, केवल उसको नजर में उस वजह से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि 5 साल का नजरिया रखिए। निवेशकों को आमतौर पे किसी भी यूलिप में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करते हैं तो दोनों ही आपको बेहतरीन तरीके का नहीं मिलता है। लोगों को टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीदना चाहिए, बल्कि निवेश के पहले आपको टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, क्योंकि
आपकी जो इंश्योरेंस की जरूरत है, अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और आपने अपने निवेश की शुरुआत की है और अभी आपके पास कोई पूंजी इकट्ठा नहीं हुआ है और अगर आपको इसको जरूरत होगी तो टर्म इंश्योरेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो पहले इंश्योरेंस की जरूरत के लिए टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी बेहतरीन तरीके का नहीं मिल पाता है। एक तो कि आप इंश्योरेंस की जरूरत पूरी तरह से पूरी नहीं होती, क्योंकि इंश्योरेंस की जरूरत बहुत बड़ी हो सकती है शुरुआत में और समय के साथ ये बदलती रहती है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत है वो इन्वेस्टमेंट के अच्छे इन्वेस्टमेंट का निशान यही है कि वो कम खर्चीला और आपको आजादी देता हो कि अगर अच्छा नहीं कर रहा हो तो आप तो निकाल पाए, जो कि उसमें उपलब्ध नहीं। दिल्ली से हमारे श्रोता अनिल लाइन पे हैं। अनिल नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। धन्यवाद अम्बरीश जी। जी, सवाल पूछिए। हाँ, पूछ रहा हूँ मैं औरों को भी चांस मिलना चाहिए। जी, तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एक तो जो मार्केट की जो वेगरीज हैं जो ऊपर नीचे जाती है, बहुत ज्यादा अनसर्टन रहता है मार्केट, इसका साइकोलॉजिकली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और सेकेंडली, बैंक जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो कितने सिक्योर हैं और इनसिक्योर है, बिकॉज पीपल आर वेरी मच अफ्रेड, दे आर स्केयर्ड ऑफ दैट एंड देयर इज अ काइंड ऑफ फोबिया which is spread all over the world around this. And thirdly, पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट ऑफिस जो अकाउंट्स हैं वहां पर ब्यूरोक्रेटिक डिले के केसेस दिखाई दिए हैं कई, इस बारे में आप जरा बताइए। नहीं, आपका पहला सवाल कि इसका आपके मनोबल पर क्या असर होता है, जो बाजार का उतार चढ़ाव है। बाजार का उतार चढ़ाव उसी का ये नतीजा है कि देश में अधिकतर निवेशक बाजार में निवेश नहीं करता है, बल्कि बाजार में निवेश की वजह से लोगों को रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, उसके बावजूद लोग उस वजह से, इस उतार चढ़ाव की वजह से लोग उसमें नहीं लगा पाते हैं। और लोगों का जो साइकोलॉजी है और जो निवेश में फायदा होने की जो जरूरत है उसका संबंध बिल्कुल विपरीत है। लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। आप देखिए, जैसे हम इस प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं कि बाजार लगातार बढ़ रहा है, लोग बहुत आशंकित हैं कि शायद बाजार अपने शिखर पे हो, बाजार में कभी करेक्शन हो जाता है, हो पाने की संभावना बहुत है। लेकिन इस समय लोग बहुत आसानी से ही पैसा निवेश कर रहे हैं, चाहे वो नई कंपनी के शेयर्स में, आईपीओs में हो या एनएफओs में। अभी आपने सुना इस प्रोग्राम के संदर्भ में कि दो फंड आई थी, एक में 12,000 करोड़ आया है, दूसरे फंड में 14,000 करोड़ आया है। जब पैसा आसानी से बन रहा हो तो लोग आसानी से पैसा लगाते हैं और उस समय लगाया हुआ पैसा जिसमें आमतौर पर निवेशकों को निराशा होती है। जैसा मैं बता रहा था, क्यों होती है? क्योंकि आप बड़ी उम्मीद के साथ पैसा लगाते हैं और आमतौर पर निराश होते हैं, और बिना किसी ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड में आप पैसा लगाते हैं, और इतना ज्यादा पैसा लगाने की वजह से ही ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज से एक फंड की शुरुआत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा डाइकोटमी है, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और इसमें समय लगेगा। अगर लोग इसमें संभाल करके लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। भारत में एसआईपी की जो शुरुआत हुई है और बहुत ढेर सारे निवेशक, अब करीब 10,000 करोड़ रुपया हर महीने एसआईपी के जरिए आता है। वहां पे लगाया हुआ निवेशक आमतौर पर निराश नहीं होता है। धीरे धीरे जब आप कई सालों तक धीरे धीरे पैसा लगाते हैं तो आमतौर पर आपको फायदा होता है और बाजार के गिरने से भी आप बहुत ज्यादा विचलित नहीं होते हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, बस बड़ी छोटी सी शुरुआत है और इसका जारी रहना और इसका जड़ पकड़ने में बड़ा समय लगेगा। तीसरा चीज की ये जो ब्यूरोक्रेटिक डिले है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेविंग्स प्लान है, जो पोस्ट ऑफिस के जरिए आपको मिलता है, बैंक के जरिए मिलता है, ये हमेशा यहाँ पे सर्विस का इशू था। लेकिन यहाँ पे लोग लाइन लगा के, धक्के खा के लोग पैसा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम से कम आपका उनको पूरा आश्वासन होता है कि यहाँ पे पैसा आपका कभी नहीं डूबेगा। इनमें लगाया हुआ पैसा, जितने भी स्मॉल नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के जो स्कीम्स है, उसमें लगाया हुआ पैसा एक तरह से भारत सरकार को दिया हुआ पैसा है, और क्योंकि उसमें कभी भी नुकसान की संभावना नहीं है, लोग उससे आसानी से उस तकलीफ को झेल लेते हैं। और वहां पे भी थोड़ी बहुत सुधार हुई है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि कंप्यूटराइजेशन और सर्विस स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, वो अभी तक जारी है। Yeah, Dhirendra, this is just a gentle reminder to our listeners that today being Sunday,
It's a mutual fund program exclusive today, and we would request our listeners just to confine their questions to the mutual fund industry itself. And moving on, we have our next caller from Delhi, Dharamveer. Dharamveer जी, स्वागत है आपका. सवाल पूछिए. जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ. जी बोलिए. परंपरा को कृष्ण जन्माष्टमी की पहले शुभकामना देना चाहूँगा. हाँ जी, धन्यवाद. धन्यवाद. जी हमारा एक्सपर्ट. नमस्कार, मैं ये पूछना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड और ऐसे फील्ड में जहाँ वो लोग ठीक सलाहकार ठीक लोग से मिले और इस फील्ड में कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे बैंक में एफडी वगैरह उनकी होती हैं, तो इस फील्ड में वो जानना चाहते हैं, इसकी उनको जानकारी नहीं मिल है, तो इसके लिए कुछ आप बता पाएंगे? Well, I think this question is not very clear, as in it was not very much audible. Yeah. What I could make out is that he's looking for how best to choose an advisor and how to derive the सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए म्यूचुअल फंड. Very briefly, Dhirendra, very briefly. We are running short of time. मुझे लगता है कि हर एक निवेशक को अपने लिए 3-4 सवाल लिख लेना चाहिए कि उनके अपने निवेश से क्या चाहिए, कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, और सवाल पूछे कि अगर आपको कोई सलाहकार बताए कि आपको ये करना चाहिए तो कुछ सवाल पूछे कि इसमें फायदा क्यों होगा. और आपका सवाल आपके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग निवेश करते हैं और बिना कुछ सवाल पूछे और बिना कुछ जाने समझे पैसा लगाते हैं. Correct. And moving on to the next story, measures taken by the government on the fronts of foreign direct investment policy reforms, investment facilitation and ease of doing business have resulted in increased FDI inflow into the country. India has attracted a total FDI inflow of $22.53 billion during April to June this year, which is 90% higher as compared to the first 3 months of 2020-21, which was $11.84 billion. And FDI equity inflow grew by 168% in the first 3 months of financial year 21-22, which is $17.57 billion compared to the period a year ago, which was $6.56 billion. And Commerce and Industry Ministry said automobile industry has emerged as the top sector during the first 3 months of financial year 21-22, with 27% share of the total FDI equity inflow, followed by computer software and hardware 17% and services sector 11%. And under the sector automobile industry, majority of the FDI equity inflow of 88% was reported in the state of Karnataka during the first 3 months of the current financial year. And Karnataka is the top recipient state during the financial year 21-22 up to June 21, with 48% share of the total FDI equity inflows, followed by Maharashtra 23% and Delhi 11%. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. धीरेन्द्र जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को उपयोगी और सार्थक जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद. धन्यवाद आपका. Thank you so much, Dhirendra. And before we close, a reminder of the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi praises the youth of the country for undergoing transformation and wanting to do something new. The CBDT extends the deadline for payment under Vivad Se Vishwas scheme, and foreign investors pump in over 14,500 crore rupees into the Indian capital markets in August. And that's it in this edition of Market Mantra. I am Nishit Kumar, saying goodbye till we meet again the next time. Market Mantra.